Hello, lovely people. How are you all doing? Today, we are going to do the exemplar questions of carbon and its compounds. The chapter is very, very important from the perspective of your boards, and it always contains 5 to 6, 7 marks in your chemistry, sometimes even more than 7 marks. So, this chapter is very, very important. So, let us do it and let us enjoy the chapter's exemplar. Subscribe to the channel, give the bell icon, and like the video if you understood the concepts. Now, firstly, let us do the multiple choice questions. So, carbon exists in the atmosphere in the form of carbon monoxide only, carbon monoxide in traces, and carbon dioxide only, and coal. So it is carbon dioxide only because it exists in the form of carbon dioxide. Okay, because only 0.03% of air constitutes carbon dioxide. Now we have the next question. The next question is, which of the following statements are usually correct for carbon compounds? These are good conductors of electricity. Poor conductors of electricity, have strong forces of attraction between their molecules, do not have strong forces of attraction between their molecules. So they are talking about carbon compounds. So you all know that carbon compounds are organic compounds and they are poor conductors of electricity and they do not have strong forces. So 2 and 4 are correct technically. So option D is correct. Next we have a molecule of ammonia, NH3, has only single bonds, only double bonds, only triple bonds, 2 double bonds and 1 single bond. So let us form the molecule C, N, okay, and H. ठीक है, H के 3 हैं, okay. So how do you form this? See, it is very simple. The valency of nitrogen is 5. Okay, so we have like its outermost shell has 5, right? So how many it needs? It needs 3 more, right? So let us draw 1 dot here, 1 dot here, 1 dot here, 1 dot here, and 1 dot here. Okay, so I have drawn 5 dots here. Now it has to share how many? It needs 3 more, right? So let us add 1 hydrogen here, 1 hydrogen here, and 1 hydrogen here. So the hydrogen will also have, so if hydrogen also has, so cross, put cross, put cross, put cross, right? So hydrogen will obviously make its bond and use one of it, right? Then hydrogen will make one more bond and hydrogen will also make one more bond here. So hydrogen will make one more bond here. So here also one more bond. Now, if the nitrogen takes all these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, all its bonds is complete. So nitrogen will be taking these all. See, it's a little messy, but I have to explain it to you. So I have done my job. I guess you have understood. So it has how many bonds? No single bond, it has only, it has no double bond, it has only single bond. So the answer is only single bonds. Next we have Buckminster fullerene is an allotropic form of obviously carbon. So this is the chapter all about. Next we have, which of the following are correct isomers of butane? So what is butane? Butane is C4H10. ओके, सो C4H10 के आपको क्या बताने हैं? आइसोमर्स बताने हैं. सो सबसे पहले तो काउंट करो 1 2 3 4. ओके, सो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बट ये तो खुद में ही ब्यूटेन है, ये तो खुद ही ब्यूटेन है, तो ये तो हम नहीं लिख सकते, ऑब्वियस ही बात है. चलो ये वाला देखते हैं. हमारे पास क्या 4 है? लेट अस चेक. ये तो खुद में ही ब्यूटेन है, राइट? सो 1 तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही होगा क्योंकि तो खुद में ही ब्यूटेन है. नाउ लेट अस चेक दिस 1 2 3, बट हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी होती है. सो ये तो नहीं, ये HCCC एंड दिस सी, ये तो नहीं होगा.
नहीं होगा ये. So yes, this one is correct and this one is also wrong. So I guess 1 and 2 are correct. So let us stick on the C part. C part is correct for the option because the first part is N-butane, that is neobutane, and the N-butane, normal butane, and then we have this part is your isobutane. Correct, everyone? Now let us move on to the next question. Next question is CH3 CH2OH. This is which alcohol? Ethanol. Ethanol को आपने ऑक्सीडाइज कर दिया क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो एसिड बन गया. हियर KMNO4 एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि वो खुद रिड्यूस हो रहा है. ठीक है. Oils on treating with hydrogen in the presence of palladium or nickel catalyst form fats. This is an example of, देखो ये मैंने आपको बार बार बताया है ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस में कि जब भी ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन या फिर कैटलिस्ट की बात आ जाए तो कैटलिस्ट किस में यूज हो रहा है? Yes, catalyst is used in the addition reaction. क्योंकि जब आप हाइड्रोजन ऐड करते हो तो क्या कर रहे हो आप उसमें? Yes, आप उसमें निकल का यूज कर रहे हो ना, निकल या प्लैटिनम टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेस और स्लो डाउन द प्रोसेस. So the answer is addition reaction. Okay, everyone. Next, in which of the following compounds OH is the functional group? So OH is the functional group in butanol, which is alcohol. Next, we have the soap molecule has a hydrophilic head and a hydrophobic tail. दिस इज करेक्ट. हाइड्रोफिलिक हेड होता है, हेड मिल जाता है एंड टेल जो है वो डरती है पानी से, तो हाइड्रोफोबिक होती है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाइट्रोजन में मैंने आपको बार बार बोला है कितने मॉलिक्यूल्स है? 5 है. तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, ये वाला बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो कितने मॉलिक्यूल्स शेयर करता है? 3 शेयर करता है. सो नीचे डी पार्ट बिल्कुल सही है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 11. Structural formula of ethyne. Ethyne is alkyne. So ट्रिपल बॉन्ड हमें चाहिए, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा क्योंकि हमें क्या चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड. ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें क्या चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड. तो इनमें से कोई ठीक होगा. तो H3 तो आ ही नहीं सकता अगर वो इधर एक बॉन्ड बना रहा है और इधर 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ 3 बना रहा है, तो ये तो गलत है. तो H सिंगल आएगा. सो A पार्ट इज करेक्ट इन दिस केस. A part is correct in this case. Okay, everyone. Now let us move on to the next question. Identify the unsaturated compounds from the following. Unsaturated compounds होते हैं बच्चे या तो इन या फिर आइन. तो obviously ये तो है, सेकेंड है और थर्ड भी है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, सेकेंड एंड थर्ड. क्लोरोप्रोपेन नहीं होगा क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे और इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है. सो 2 and 3 आर करेक्ट. 2 and 3 वाला ऑप्शन है डी पार्ट. क्लियर एवरीवन? नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लोरीन रिएक्ट्स विद सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एट रूम टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट? नो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. क्लोरीन कभी भी रिएक्ट करती है तो वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रिएक्ट करती है. In soap micelles, the ionic end of soap is on the surface of the cluster while the carbon chain is in the interior of the cluster. This is बिल्कुल correct. ठीक है. Now we have the next question. Pentane has the molecular formula C5H12. It has 5 covalent bond, 12 covalent bond. ये तो हमें बना के देखना पड़ेगा. देखो कार्बन का, देखो हर कार्बन के कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? 4. तो एक बॉन्ड ये बना रहा है इधर, एक बॉन्ड ये बना रहा है इधर. पेंट मतलब 5, तो हमें 5 बनाने. 1 2 3 4 5. ठीक है. अब इस कार्बन ने एक बॉन्ड बना लिया ऑलरेडी, तो इसको कितने और बनाने हैं? 3 बॉन्ड और बनाने हैं. तो 1 मिनट, हम इनको बनाएंगे इस वाले कलर से H. अब इसको 2 और बनाने हैं H. अब देखो इस वाले कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, तो इसको सिर्फ 2 ही बॉन्ड और बनाने हैं H और H. अब इस वाले कार्बन ने भी एक बॉन्ड इधर बना लिया, एक बॉन्ड इधर बना लिया, तो इस वाले बॉन्ड को एक इधर बनाना है, एक
इधर बनाना है, करेक्ट। इस वाले ने भी एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, तो इसको भी सिर्फ 2 ही बनाने हैं, करेक्ट। इस वाले को कितने बनाने हैं, इस वाले ने सिर्फ एक ही बनाया है, इधर कुछ नहीं बनाया, तो इधर एक इधर और एक इधर बनाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका C5H12। अब इसके कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5। पहले हम कार्बन के गिनते हैं, कार्बन के 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए ऐसे स्ट्रेट, और 1 2 3 4 5 5 + 6 11 11 + 5 is 11 + 5 is 16। सो 16 टोटल बॉन्ड्स ये बना रहा है। सो आपका आंसर है 16। इसको काउंट करना मैंने आपको सिखा दिया। देखो इधर 5 बना रहा है, इधर 5 बना रहा है, और बीच में ये 6 बना रहा है, तो हो गए ना, ठीक है। 5 + 5 10 एंड 10 प्लस बीच वाला 6 equals to 16. Now next question is structural formula for benzene. बेंजीन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसका सी पार्ट है बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक सिंगल बॉन्ड होता है, ये होता है बेंजीन में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड साथ साथ में है, तो ये गलती यहाँ पर है। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और तभी होगा, और यहाँ पर भी तो होने चाहिए हाइड्रोजन, और तभी ये पर सेटिस्फाई होगा, ऐसे सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए सी पार्ट इज बिल्कुल ठीक, ठीक है। आप पैटर्न को पूरा अच्छे तरह से नोट करा करो, ठीक है, नहीं तो गलती हो सकती है। नेक्स्ट, इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम and forms 2 products. These are, देखो ethanol is C2H5OH। किसके साथ रिएक्ट कराने को बोल रहे हैं, ये सोडियम के साथ। देखो Na के साथ आप रिएक्ट कराओगे तो आपके पास आ जाएगा C2H5ONA। दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। एंड हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या आता है, बताओ जल्दी से, H2। तो हमारे पास आता है सोडियम इथेनोएट, तो नहीं आता है, तो दोनों ही ऑप्शन कट जाएंगे। हमारे पास आता है सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन, तो सी पार्ट बिल्कुल सही है। क्लियर एवरीवन? इक्वेशन मैंने आपको ये लिख के दिखा दी है, ठीक है। प्लीज इक्वेशंस लिख लिया करो पेपर में। देखो मेरे को कितना कम टाइम, 1 मिनट भी अगर आप हर एमसीक्यू को दोगे तो भी सिर्फ आपके 20 मिनट्स ही लगेंगे एमसीक्यूज में, और अगर आपको ज्यादा टाइम लगता है एमसीक्यू में तो आप इनको एंड में करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, द करेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड बोला है, तो सबसे पहले तो देखो किस किस में COOH नहीं है, ठीक है, और डबल बॉन्ड कभी नहीं होता, तो डबल बॉन्ड यहां से हटा दो। देखो इसमें तुम्हें कहीं दिख रहा है COOH, तो ये भी हटा दो, ठीक है। डबल बॉन्ड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है, कार्बन में कभी डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। तो या तो ये सही है या फिर ये सही है। अब इसमें देखो कमी क्या है, देखो यहाँ ये 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ ये एक और बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी एक और बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, तो ये 5 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, तो ये वाला भी गलत है। डी पार्ट बिल्कुल सही है। आपको ये नहीं कि आपने सही ऑप्शन ठीक कर दी, आपको ये भी देखना है कि बाकी ऑप्शंस में ऐसी क्या गलती थी कि ये वाली ऑप्शन सही है, तो डी पार्ट बिल्कुल सही है। गलती मैंने आपको इस वाली की बता दी, 5 बना रहा है ये बॉन्ड, कार्बन ये वाला 5 बॉन्ड बना रहा है। ध्यान से देखो, एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड ये रहे, 3 हो गए, एक बॉन्ड ये रहा 4 और एक 5। कार्बन को तो बनाने ही 4 होते हैं, 5 कैसे बना सकता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू विनेगर। विनेगर इज अ सोल्यूशन ऑफ 50 to 60% acetic acid in alcohol, 5 to 8% acetic acid in alcohol, 5 to 8% acetic acid in water। ये बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को हो सकता है ना पता हो, तो ये आप लोग नोट कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, mineral acids are stronger acids than carboxylic acids because mineral acids are completely ionized। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट पार्ट तो। then carboxylic acids are completely ionized, गलत। mineral acids are partially, गलत। carboxylic are partially, तो 1 and 4 वाली ए पार्ट बिल्कुल सही है।
तो आपका ए पार्ट बिल्कुल सही है 20th ऑप्शन का। इसका रीजन है, आप बुक खोल के देख सकते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाइंस हैं बुक की। नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद 4 univalent atoms, example hydrogen. After the formation of 4 bond, carbon attains the electronic configuration of helium, neon, argon, krypton. Okay, नाउ सबसे पहले आप समझो किसकी वो अटेन कर रहा है, तो वो कर रहा है अटेन 2 और 8, क्योंकि वो 4 थे उसके पास, उसने 4 और ले लिए क्या, शेयर कर लिए, है ना। तो 2 और 8 अटेन कर रहा है, यानी वो 10 की कर रहा है अटेन। और हीलियम की क्या होती है, हीलियम की होती है 2, हीलियम की 2 होती है एटॉमिक नंबर, तो वो एटॉमिक नंबर 10 की गेन कर रहा है, 10 की गेन कर रहा है, यानी वो किसकी कर रहा है, नियॉन की गेन कर रहा है। आर्गन की नियॉन से ज्यादा होती है और हीलियम की इससे कम होती है। और क्रिप्टॉन के बारे में आपने इतना पढ़ा नहीं है, तो क्रिप्टॉन तो हो ही नहीं सकता था, तो नियॉन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज। तो ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए बच्चे, पहला तो बिल्कुल ही गलत है, हाइड्रोजन के एटम्स ही नहीं है। दूसरा भी गलत है, हाइड्रोजन के एटम्स नहीं है। अब यहां देखो, ये तीसरा भी गलत, चौथा फोर्थ इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज हाइड्रोजन के एटम्स नहीं है, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ये बिल्कुल सही होगा। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं मुझे बताओ, 6 होते हैं, और हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं, 1 इधर से 1 इधर से, तो 6 + 2 कितने हो गए, 8 हो गए। हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 ही चाहिए होते हैं, ठीक है। सो ये इसका सी पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन नहीं है ये जो है, ये देखो ये आपकी स्ट्रेट चेन ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि आप ध्यान से देखो, यहां से चेन पकड़ी और ये बिल्कुल सीधी सीधी बन गई, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन कंसिडर करी जाएगी। और ये वाली भी बिल्कुल स्ट्रेट कंसिडर करी जाएगी, और ये वाली भी बिल्कुल स्ट्रेट कंसिडर करी जाएगी। डी पार्ट जो है वो हम स्ट्रेट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये 2 बॉन्ड्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, ठीक है। 2 बॉन्ड्स जब यहाँ पर भी बन रहे हैं, यहाँ पर भी बन रहे हैं, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं है, क्योंकि 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं, दिस इज अ ब्रांच्ड चेन, ठीक है। तो डी पार्ट जो है वो इसका आंसर है, एंड बाकी तीनों स्ट्रेट चेन्स हैं। डी पार्ट पे हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनके या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहले वाले में तो सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये तो हो नहीं सकता। दूसरे वाले में ट्रिपल बॉन्ड है तो सेकेंड हो सकता है। तीसरे वाले में सिंगल बॉन्ड है, ये नहीं हो सकता। चौथे वाले में डबल बॉन्ड दिख रहा है हमें, तो 2 and 4 आर करेक्ट। तो 2 and 4 वाली कोई ऑप्शन है, यस सी पार्ट है, तो हम 2 and 4 पे टिक कर देते हैं। क्लियर एवरीवन, 2 and 4 पे टिक कर दिया सबने। आई होप ये आप सबको समझ आ गया है, ठीक है। 2 and 4 पे टिक कर, ओके। नाउ let us move on to the next question. Yes, which of the following does not belong to the same homologous group, ठीक है। होमोलोगस सीरीज का कौन सा ये जो है इनमें से नहीं करता, तो CH4 C2H6, CH4 is methane, C2H6 is ethane, C3H8 is propane, and C4H8 is ene, it is ब्यूटीन। तो डी पार्ट नहीं करता है, सो दिस इज नॉट फ्रॉम द सेम होमोलोगस, बाकी सेम होमोलोगस में से है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द कंपाउंड CHO। CHO किसका होता है, प्रोपेनल का, ठीक है। CHO बोला है, अगर वो बोलते CHO बोला है ना बच्चे, अगर वो CO बोलते तो होता प्रोपेनॉन, ठीक है, फिर होता प्रोपेनॉन, ठीक है। अभी ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ओके। हेट्रोएटम्स प्रेजेंट इन, दिस इज हेट्रोएटम कौन कौन से, एक तो ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे, एक क्लोरीन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली क्लोरीन और ऑक्सीजन, तो 1 and 4, 1 and 4, डी पार्ट इज
करेक्ट एवरीवन, तो आप बिल्कुल टिक कर दें डी पार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, ओ लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए एमसीक्यू में, फिर आज की वीडियो हो जाएगी डन, फिर हम शॉर्ट आंसर टाइप बाद में करेंगे। Which one of the following represents saponification reaction? CH3COONA, this is sodium ethanoate, plus NaOH, CaO तो बिल्कुल नहीं आता, तो ये तो हटा ही दीजिए। CH3COO C2H5OH, ये भी गलत है। एस्टर चाहिए हमें, तो एस्टर तो डी पार्ट में ही है, तो ये आएगा आपका लास्ट पार्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्काइन होमोलोगस सीरीज इज इथाइन। वेरी गुड, इट इज नॉट प्रोपाइन। इथाइन का बना सकते हो 1 2 3 1 2, इधर H लगाओ, इधर भी H लगाओ, बन गया इथाइन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो if you understood the concepts, and do revise carbon and its compounds. You can get the exemplar links in the description box along with your date sheet link. All the best for your boards. Love you all.